السلام علیکم، میں ہوں ام معاذ، ناول کے جہاں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلی قسم میں ہم نے پڑھا کہ تالیہ نے کس طرح مسز شیلا سے یہ کہہ کر کہ اس کے والد اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس گھر سے استعفیٰ دے دیا، اور فاتح رامزل اپنی میٹنگ کے بجائے اپنے دوست شمس سے ملنے گیا۔ وہاں اس نے اپنے آگے کے منصوبے کے بارے میں اس سے کچھ گفت و شنید کی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اسرا کے بھائی کس طریقے سے اپنی بہن کو جو ہے چیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے جو ہے ایک پینٹنگز کی نمائش لگانی ہے اور اس میں وہ اپنی بہن کو ایک غلط جو ہے پینٹنگ کی آکشن کرائے گا، اور تاکہ اس میں فاتح رامزل پھنس جائے اور جو ہے اس کا بھائی کسی طریقے سے وزیر اعظم بن جائے۔ اب اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا کہ تالیہ جو ہے وہ داتن کے ساتھ مل کے فاتح رامزل کے گھر چوری کے غرض سے جاتی ہے، لیکن جو ہے الارم بج جاتا ہے اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اگلی صبح جب اس کالونی پہ اتری تو ایک لڑکی بائیسیکل چلاتی سڑک پہ آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھ میں باریک دستانے چڑھا رکھے تھے، چہرے پہ سبز رنگ کا ڈسٹ ماسک تھا اور سر پہ پی کیپ۔ سائیکل کی ٹوکری پہ اخباروں کے رول پڑے تھے جن کو ایک ایک کر کے ہر گھر میں اچھالتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ موڑ کاٹ کے غائب ہوئی، سڑک پہ پھر سے خاموشی چھا گئی۔ فاتح رامزل کے دروازے سے گارڈ نے اخبار کا رول کھولا تو فلمی میگزین تھا۔ وہ صفحے پلٹاتے ہوئے اندر کی طرف چلا آیا اور رسالہ ملازمہ کی طرف بڑھا دیا، جس نے لیتے ساتھ ہی ریک میں رکھ دیا، کیونکہ ایسے بیکار رسالے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا تھا مگر اخبار والے پھینک جایا کرتے تھے۔ ناشتے کے لیے ملازمت جب تازہ بریڈ لینے باہر نکلی تو نامحسوس انداز میں اپنی کلائی کھجا رہی تھی۔ وہ ہر صبح اس بیکری پہ تازہ بریڈ لینے آتی تھی، مگر آج وہ شدید خوف میں نظر آ رہی تھی۔ ٹرالی میں روزمرہ کا سامان بھرتے ہوئے کبھی ماتھے پہ خارش کر دی، کبھی گردن کی پشت کو رومال سے رگڑتی۔ صرف ننھے ننھے دانے سے اس کی جلد پہ پھوٹ پڑے تھے۔ یہ بریڈ پکڑانا اسے طبیعت پہ چھائی ایک تہٹ سے سامنے کھڑی موٹی سی عورت کو مخاطب کیا، جو آواز پہ پلٹی اور پھر بریڈ کا پیکٹ اٹھا کے اس کی طرف آئی، مگر اس کی جلد دیکھ کے منہ کھلا رہ گیا۔ پیکٹ ٹرالی میں تقریباً پھینکا اور خود بدک کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھ سے دور رہو، تو مجھے ڈینگی ہو رہا ہے۔ ڈینگی؟ ملازمہ شل رہ کے پھر ادھر سے دیکھا اور عورت اب آگے بڑھ گئی تھی۔ کسی اور نے نہیں سنا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ٹرالی ڈھکیلتی گئی، البتہ چہرے پہ پریشانی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ ان نقلی سمٹمز کو اترنے میں کتنی دیر لگے گی تالیہ؟ فاتح رامزل کے گھر سے وہ 2 گلیاں چھوڑ کے ایک پارک آتا تھا۔ اس کے سر پہ ایک بینچ پہ تالیہ بیٹھی پیکٹ سے چپس نکال کے کھا رہی تھی، جب ہانپتی کانپتی داتن اس کے ساتھ آ کے بیٹھے۔ ان دونوں نے اوپر تدنگ پہن رکھا تھا جس میں صرف چہرہ دکھتا تھا اور نیچے ڈھیلا ڈھالا سا لباس تھا۔ ایک دن مگر بے فکر رہو، آدھی بیماری اللہ دیتا ہے تو باقی آدھی گوگل لگا دیتا ہے۔ جب یہ ڈینگی کو نیٹ پر سرچ کرے گی تو 2-4 مزید علامات بھی ظاہر ہونے لگیں گی جو ہمارے الرجک اسپرے کا حصہ ہی نہیں تھی۔ ملازمہ جس وقت ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سرو کر رہی تھی، اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، سر دکھ رہا تھا اور جلد پہ سرخ دھبے ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ موبائل پہ ڈینگی کو سرچ کر چکی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے۔ خاموشی سے اس نے ناشتہ اسرا کے سامنے لا رکھا، جو گہرے نیلے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس گیلری جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ گردن سے چپکی موتیوں کی لڑی اور کلائی میں طلائی بریسلٹ پہنے وہ سیل فون دیکھ رہی تھی جب کسی احساس کے تحت چونکی۔ تمہیں کیا ہوا؟ میم، مجھے شاید ڈینگی ہو گیا ہے۔ واٹ؟ اسرا کی آنکھیں کھل گئی۔ کیسے؟ کب؟ گارڈ، تم لوگ اپنے گھروں میں پانی کیوں جمع رکھتے ہو؟ میم، میرا قصور نہیں ہے، حسن کو بھی ایسے ہی دانے نکل رہے ہیں، وہ منمنائی۔ گاڈ! اسرا نے پٹی کو چھوا۔ چیک اپ کراؤ اپنا، اور حسن سے بھی کہو، سمیع تم بچوں کا خیال رکھنا اور گھر کی صفائی اپنی نگرانی میں کرواؤ۔ اور آج خیال آیا تمہیں بتانے کا، ریش تو ہفتے بھر کے بعد جا کے ہوتے ہیں۔ اس کا ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ جی میم، بخار تو تھا کچھ دن سے، اسی سوچ کے ہی تھکاوٹ ہونے لگی۔ پارک میں وہ بھی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ تالیہ مسلسل چپس کھا رہی تھی، داتن بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کتنا انتظار کرنا ہے مزید؟ چند منٹ مزید، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ مسز فاتح اب تک پیسٹ کنٹرول فون کر چکی ہوں گی۔ چند منٹ گزرے اور پیسٹ کنٹرول کی ایک بڑی سی وین قریب سے گزری۔ تالیہ نے گردن موڑ کے دیکھا، سیاہ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ وین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے چینی نوجوان نے اسے دیکھ کے سر کو خم دیا اور وین روک لی۔
चलो। वो तेजी से उठी, आगे पीछे दोनों वैन की तरफ बढ़ी थी। वैन की पिछली तरफ सवार होकर उन्होंने अपने तदंग उतार दिए। नीचे दोनों ने पेस्ट कंट्रोल का जर्द यूनिफॉर्म पहन रखा था। तालिया ने अपने बैग से टोपियां और मास्क निकाल के दातिन की तरफ बढ़ाई। पिछली तरफ एक ही वर्कर बैठा था जो उनसे वाकिफ लगता था। इससे जल्दी जल्दी उनको सिलेंडर और दूसरी चीजें थमाने लगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कैट, डॉक्टर ने रोकदार आवाज में से घूरा था। ये तीसरा स्कैम है जो साशा, मैं और आप कर रहे हैं। पहले कभी गड़बड़ हुई थी क्या? हम पेस्ट कंट्रोल में नौकरी ही इसलिए करते हैं ताकि डेंगी स्कैम कर सके। अगर हमारी जगह आप जाली वर्कर्स लेकर जा रहे तो बाद में भांडा फूट जाता। अब हमारा सारा काम लीगल है, वो बुरा मान के बोला था। और सुनो, दातिन कहने लगे तो ताले ने दबी आवाज में से टोका, ज्यादा बातें नहीं करो इससे मोटी, शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। गलत, तुम मेरी दादी की उम्र की हो। चंद मिनट बाद फातिर रंजल के लॉन में वर्कर्स स्प्रे करते नजर आ रहे थे। असरा बादल नखास्ता रुक गई थी मगर कार में बैठी थी। मुलाजिम निगरानी पे खड़े थे। वर्कर्स का हेड ऑफिस ऊंची ऊंची हिदायत दे रहा था। सारे में घनी धुंध फैली थी। दातिन लाउंज पे स्प्रे करवा रही थी। ऐसे में सबको मसरूफ पाकर तालिया धुंध में फॉग ग्लासेस की वजह से देखती आगे चलती है। वाईफाई जैम कर दिया था और होम अलार्म गार्ड ने खुद ही ऑफ कर दिया था। कहा था ना वो हमें खुद दावत देंगे। अब तालिया कान में लगे नन्हे से आले में बोली। ऐसे ही एक आला दातिन के कान में भी लगा था। उसने लाउंज के परले कोने से इसे इशारा किया। कुछ तो मुतवज्जा नहीं था। तालिया तेजी से बेडरूम में घुस आई। अंदर आके उसने ग्लास उतारे और गर्दन घुमा के अतराफ का जायजा लिया। सादा कमरा, सादा पर्दे, खाली दीवारें। बेड साइड टेबल पर रखी एक नन्ही बच्ची की तस्वीर और साथ में मुस्कुराता फातिह। तालिया आगे आई और ड्रेसिंग रूम की अलमारियां खोली। मर्दाना कपड़े टंगे थे। ये फातिर रंजल का कमरा था। बेसिल तो मिसेस फातिह क्लाई में पहने रखती हैं मगर एक एंटीक तोहफा उन्होंने यकीनन अलमारी या लॉकर में रखा होगा। मगर तालिया, तुम तो कह रही थी कि फातिह ने तंगू कामिल के बेटे के मुंह पे कह दिया था कि वो सिक्का असली नहीं है। हाँ, असली ना सही, कदीम तो है ना। कोई एंटीक ऐसे फेंक तो नहीं देता। और मिसेस असर जैसे आर्ट कलेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं। अब वो जल्दी जल्दी दराज खोल रही थी। मुख्तलिफ खाने चेक किए पर आखिर अलमारी खोली तो देखा सामने कोने में नन्हा सा सेफ नस्ब था। सेफ की हैयत देखकर मुस्कुरा दी। आज हमारा अच्छा दिन है बुढ़िया, काम में लगे आलिम में बोली, क्योंकि इतने बड़े लीडर ने अपनी कीमती चीजों को छुपाने के लिए सिर्फ एक फायर सेफ का सहारा लिया है। क्या फायर से? दरवाजे के बाहर खड़ी दात ने हैरत से सरगोशी की। फिर अंदर आते मुलाजिम को देखा तो उस पर बरस पड़ी। तुम बगैर मास्क के अंदर क्या आ रहे हो? कैंसर करवाना है? फेफड़े खराब कराने हैं? जानते ही कैमल कितने नुकसानदेह है। मास्क पहन कर आओ। मुलाजिम हड़बड़ा के बाहर भागा। मेरे कान में मत चीखो। अंदर सेफ के सामने घुटनों के बल बैठी तालिया ने बुरा मुंह बनाया। फिर अपना नन्हा बैग जमीन पे रखा। तिजोरियां मुख्तलिफ तरह की होती है। फायर से वो तिजोरी होती है जो अगर घर को आग लग जाए और तिजोरी 2-3 घंटे जलती भी रहे तो अंदर की चीजें महफूज रहती हैं। ऐसी तिजोरियों में लोग कीमती कागजात रखते हैं और उनको खोलना आसान होता है। दूसरी किस्म की तिजोरियां जो जेवरात या रकम के लिए होती हैं उनको बर्गलरी सेफ, चोरों की तिजोरी कहा जाता है। जल्दी ये भी नहीं है मगर चोरों के लिए उनको खोलना बहुत कठिन होता है। तुम मकनातीस लाई हो? दातिन ने सभी दबी सरगोशी में कहा। तालिया सारा ज्यादा रास हाथ उठाती है मैडम। उसने मुस्कुरा के बैग से एक सिल्वर रंग का गोल हॉकी पेट्रायर रेयर अर्थ मैग्नेट निकाला। वो ऐसा था जैसे 2 शामी कबाबों के ऊपर तले मिला के रखा गया हो और उसको एक जुराब में डाला। अगर डायरेक्ट मकनातीस लोहे पे रख देती और उसकी उंगली दरमियान में आ जाती तो वहीं चुपकी पड़ी होती। फिर जुराब में लपटे मकनातीस को तिजोरी के दरवाजे के ऊपरी बाएं कोने पे रखा। ये सबसे पहला सेफ है जिसको खोलना सीखा था मैंने, दातिन वो मुस्कुरा के बताने लगी। उसके अंदर जो कुंडा दरवाजे के लॉक को जोड़े हुए है वो मकनातीस के साथ चिपक जाता है यूं, और उसने मकनातीस आहिस्ते से दाएं तरफ फेरा तो दरवाजे की दूसरी तरफ कुंडा हिलने लगा। चंद सेकंड मजीद लगे और क्लिक की आवाज आई। तालिया ने तिजोरी पर नस्ब पासवर्ड पैड को जबान निकाल कर दिखाई। हा हा, जब मकनातीस है मेरे पास तो तुम्हारे पासवर्ड को दबाने की जरूरत क्या है? और मजीद से दरवाजा खोला, वो खुल गया। फातिर रंजल की फरिश्तों को भी नहीं इल्म होगा कि किसी ने तिजोरी खोली थी। मुस्कुरा के अब वो कागजात बाहर निकालने लगे। फिर अंदर हाथ मारा। मुस्कुराहट गायब हुई। वहाँ कुछ रकम, पासपोर्ट, कागजात वगैरह के सिवा कुछ न था। तालिया का चेहरा उतर गया। तिजोरी बंद करके उठी और खुली अलमारी को देखा। फिर भवें सुकोड़ी, सिर्फ मर्दाना कपड़े।
टाई कोट, ये सिर्फ फातिह का कमरा है क्या? वो चौंके, फिर जल्दी से सब कुछ ठीक करके बाहर आए। लाउंज में वर्कर्स इसी तरह काम कर रहे थे। गहरी धुंध हरसू फैली थी। दातिन को इशारा करते वो दूसरे मास्टर बेडरूम में चुपके से दाखिल हुए। दो मुलाजिम सामने ही थे मगर धुंध के बाद उसको नहीं देख सकते थे। वाह क्या आलीशान कमरा था असरा का। ऊंचे मखमली पर्दे, कीमती पेंटिंग्स और आर्ट वर्क। ड्रेसिंग टेबल पर सजी परफ्यूम की बोतलें। सताइशी अंदाज में इधर उधर देखती वो सिंगार मेज तक आए और दराज खोले। फिर वार्डरोब खोला, कोई सेफ नहीं था। बेड साइड टेबल चेक की मगर बेसुध। ठहरो, वहाँ एक रिमोट पड़ा था। ये ब्लाइंड्स के रिमोट जैसा था, एसी का तो नहीं था। ताले रिमोट एक पेंटिंग की तरफ बुलंद कर बटन दबाया। पेंटिंग आहिस्ते से दाएं तरफ हटी और दीवार में खाना नजर आने लगा। अंदर यकीनन सेफ था। वो मुस्कुराए आगे बढ़ी मगर जैसे ही वो करीब आई मुस्कुराहट फीकी पड़ी। दिल धक से रह गया। जल्दी करो तालिया, दातिन इसके कान में शोर डाले हुए थी। दातिन, इसको अपनी आवाज़ गहरी खाई से आती सुनाई दी। सेफ मिल गया है मगर ये TL30 सेफ है, ग्रुप 2 कम्बिनेशन लॉक। इसने दरवाजे पे लगे पहिए को छुआ। अगर इसमें ड्रिल से सुराख करूं तो दरवाजे के अंदर शीशे की तह टूटकर उसको मजीद मुश्किल तरीके से लॉक कर देगी। मुक्के मारूं तो स्प्रिंग रिलॉक हो जाएगा। आड़ी से काटूं तो 1 घंटे बाद दरवाज़ा कटेगा। फिल्मों में तो लोग 1 मिनट में खोल लेते हैं तालिया। शायद 2-4 ऐसे एक्सपर्ट हों दुनिया में, लेकिन अगर मैं लॉक को घुमा कर अंदर पिंस की आवाज़ सुनते हुए इसका पासवर्ड कॉम्बिनेशन मालूम करने की कोशिश करूं तो इसमें 75 मिनट लगेंगे, 1.25 घंटा। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर तालिया रुक कर हसद निगाह से सेफ को देखा, चंद कदम पीछे हटी। फिर भागो दातिन, मैं तुमसे गाड़ी में मिलती हूँ। दातिन तेजी से बाहर को निकली, चेहरा झुकाया, धुंध में चलती हुई घर से बाहर निकल आई और सड़क पार की। पार्क तक आई, उनकी कार वहीं खड़ी थी। दातिन ने बैठते ही अपना मास्क उतारा और इधर उधर देखा। तालिया अभी तक नहीं आई थी। वो कुछ देर इंतजार करते थे। तालिया किधर हो? उसे फिक्र हुई। तालिया की फंसी फंसी सी आवाज़ सुनाई दी। दातिन, वो मुलाजिम आ गया तो मैं अलमारी में छुप गई। वो मुझे अलमारी में लॉक कर गया है। दातिन के पैरों तले से जमीन निकलने लगी। तालिया तालिया, ये कैसे हुआ? दातिन, मुझे निकालो, मेरा दम घुट रहा है। और ओह, मैं क्या करूं? तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। दातिन को ठंडे पसीने आने लगे थे। दातिन, मुझे निकालो, मुझे सांस नहीं आ रहा। ओ खुदाया, प्लीज मुझे बचा ले, मेरा दमा खराब हो रहा है। तालिया मेरी बच्ची, तो दातिन की आंखों में आंसू हो जल्दी से मास्क पहनने लगी। फिर रुकी, तुम्हें कब से दमा हुआ? 2 मिनट पहले से। वो उसके कान के इतना करीब चीखी कि दातिन उछल पड़ी। तालिया हंसती हुई दरवाजा खोल कर अंदर बैठ रही थी। दातिन का मुंह खुला का खुला रह गया था। ऐसा चलते चंद हमें गुजरा, उसकी रंगत सुर्ख पड़ने लगी। तुम? गुस्से के मारे वो बोल नहीं पा रही थी। हा हा हा, और वो हंसती जा रही थी। मैं अलमारी में फंस सकती हूँ क्या? हा हा, तुम तो रोने वाली हो गई थी। उफ, तुम कितनी क्यूट हो दातिन। पिद्दू का उसने मोटी औरत के सियाह फूले गाल की चुटकी काटी। दातिन ने गुस्से से आंखें लगी और बेबसी से उसे देखा। तुम छोटी हिरनी, तुमने मुझे कितना डरा दिया। अंदाजा है तुम्हें किसी दिन सच में फंसोगी और मैं नहीं आऊंगी। कुंचील कहानियों वाला छोटा हिरन। अच्छा ना, डांडूट नहीं। वो टोपी उतारते हुए कह रही थी। दातिन ने करके कार स्टार्ट की। अब क्या होगा? प्लान ए के बाद प्लान सी भी बेकार हो गया। बेफिक्र रहो, प्लान डी है ना। फिर उसे जेब से एक सुर्ख और गुलाबी कार्ड लहरा के दिखाया। मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि मैं मिसेज असरा के नीलामी में अपना ज़बरदस्ती वाला इनविटेशन कार्ड उठाने रुक गई थी। ये है हमारा प्लान डी। और प्लान बी का क्या? दातिन को सख्त चिढ़ हुई। तालिया के प्लान्स हैं, तालिया की मर्जी। उसने बेनियाजी शाने चुकाए। और अगर मुलाजमा ने चेकअप के बाद बताया कि उसको डेंगू नहीं हुआ तो असरा को शक नहीं होगा। दातिन अभी तो गुस्से से उसकी गलती निकालना चाह रही थी। अभी दुनिया में मुलाजमाओं की वो किस्म पैदा नहीं हुई दातिन जो मालिक को कहे कि वो बीमार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है उस जब सच बता के छुट्टी और मारी इमदाद लेने का इतना अच्छा मौका गंवा देगी? दातिन गुस्सा हवा होने लगा। ड्राइवर करते हुए उसने एक गहरी सांस लेकर तालिया को देखा। इस वक्त मुझे बहुत बुरी लग रही हो तुम, लेकिन एक बात है, तुम कभी भी मायूस नहीं होती, हार नहीं मानती। एक प्लान ठप हुए तो दूसरे ले आती हो। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो तुम तालिया? पतले और जवान लोगों में बड़ी हिम्मत होती है बुढ़िया, मगर तुम क्या जानो। वो अफसोस से बोली थी और दातिन ने चंद मिनट के लिए उससे बात न करने की कसम उठा ली थी।